So it is the second lecture of wave optics, and the topic is Heisen's wave principle of secondary wavelets. In the previous classes, we have discussed about the various theories about the wave optics, or which prove the wave nature of light, right? So here we study about Heisen's principle of secondary wavelets. His name pronunciation is Huygens, Huygen, Hazen. All these pronunciation Huygens have. So what he said or what he proposed in his theory or principle, Huygens principle is the basis of wave theory of light. It is based on the Huygens wave theory, which we studied yesterday's class. It tells how a wavefront propagates through a medium. We all know what is a wavefront. What is a wavefront? The continuous locus of all the particles which are vibrating in the same phase is known as a wavefront, right? We have studied about different types of wavefronts like spherical, cylindrical, and plane wavefront. You know? So this principle is used to determine the upcoming wavefront. यानी कि अगर कोई वेवफ्रंट है हमारे पास, तो अगली वेवफ्रंट की क्या लोकेशन होगी, उसके लिए ये प्रिंसिपल या थ्योरी यूज होती है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू इट, इफ वी हैव अ स्फेरिकल वेवफ्रंट, ठीक है, ये एक स्फेरिकल वेवफ्रंट है AB. You have to write all these things. ठीक है. Firstly understand. If we draw some points over it, these acts as a center. If we draw circle by keeping these points as a center, so if we draw circles, ठीक है, what we call these circles? Secondary wavelets. What we call these circles? ठीक है. What we call these circles बेटे? Secondary wavelets. And when we join these secondary wavelets tangentially, अगर हम इस circles को tangentially इस तरीके से join करेंगे, so what we have? We have secondary wavefront. ये जो येलो कलर की थी, ये जो थी, this is primary wavefront. Primary wavefront. And these circles, किसी भी पूरी जो प्राइमरी वेव फ्रंट है उस पर कोई भी पॉइंट बनाओ, उससे सर्कल ड्रॉ करो, और सर्कल जब हम टेंजेंशियली ज्वाइन करेंगे, व्हाट इट गिव्स द सेकेंडरी वेव फ्रंट. सेकेंडरी वेव फ्रंट. एंड दीज सर्कल्स आर नोन एज सेकेंडरी वेवलेट्स. समझ में आया? नाउ अब इन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स दिए थे? वी डिस्कस्ड अबाउट दीज पॉइंट्स. नंबर 1, so important points of हेजन्स प्रिंसिपल या हेजन्स वेव थ्योरी. ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स थे? नंबर 1, दिस इज अ प्राइमरी वेव फ्रंट. प्राइमरी वेव फ्रंट थी बेटा, एक वेव फ्रंट थी, यानी कि वेव का एक उभार था. एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट इज अ फ्रेश सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट. हम इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लें, उससे क्या बनेगी? एक नई सेकेंडरी वेवलेट बनेगी. और वेवलेट को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? सेकेंडरी वेव फ्रंट. अंडरस्टूड दीज पॉइंट्स? व्हाट ही सेड इन द फर्स्ट पॉइंट? every point on the primary wavefront is a fresh source of secondary wavelet. प्राइमरी वेव फ्रंट पे कोई भी पॉइंट है, उससे हम सेकेंडरी वेव फ्रंट बना सकते हैं. बना सकते हो ना? ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट इज एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट
is the fresh source of secondary wavelets. ठीक है. And second point, these travel with the speed of light. ये जो secondary wavelets होती हैं या wave front होती हैं, these travel with the speed of light. And if we join these secondary wavelets tangentially, we got a secondary wave front. दो चीजें हैं, secondary wavelet and secondary wave front. Secondary wavelet क्या है? जो किससे मिलके बना है? ये जो सर्कल्स हैं, जो किससे मिलके बने हैं? जब हमने प्राइमरी वेव फ्रंट पे कोई भी पॉइंट लिया, उससे एक सर्कल ड्रॉ किया, तो हमारे पास सेकेंडरी वेवलेट्स आ गए. एंड व्हेन वी जॉइन दी सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली, देन वी गॉट सेकेंडरी वेव फ्रंट. तो हमने वेवलेट से वेव फ्रंट बनाया. सो नेक्स्ट पोजीशन पता चली ना कि नेक्स्ट जो वेव फ्रंट बनेगी वो किस डिस्टेंस पे बनेगी. वैसे हम बैकवर्ड में बना सकते हैं, बट क्योंकि जो वेव है दैट प्रोपगेट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वो पॉसिबल है, बैकवर्ड में वो पॉसिबल नहीं है. अंडरस्टूड दीज पॉइंट्स. सो व्हाट ही सेड इन हिज सेकंड पॉइंट कि इफ वी जॉइन ऑल secondary wavelets tangentially, it gives the position of next new secondary, next को रहने दो, न्यू कर दो, पोजीशन ऑफ न्यू सेकेंडरी वेव फ्रंट. ठीक है. सो दीज आर टू पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू हाइजेंस प्रिंसिपल या ह्यूगन्स प्रिंसिपल. ठीक है. अंडरस्टूड ना बेटे? देन यू इजिली ड्रॉ दिस डायग्राम that from the primary wavefront we draw points. Each point is a fresh source of secondary wavelet, and when we draw tangentially, when we join tangentially these secondary wavelets, we have a new secondary wavefront. समझ में आया? ठीक है. So this is Huygens principle या Huygens principle. Understood? You have to write that letter. Here you have to write, let AB be a primary wavefront, in which particles travel with the speed of light. Let some points draw circles. ठीक है. By taking these points as a center, then when we join these circles tangentially, then we got a new wavefront. So you have to write all these things. Understood ना? This is very important wave principle या wave theory. ठीक है. जरूर आती है ये. Next we have, so what we have studied, that reflection and refraction. What we have studied yesterday bete? Reflection and refraction are proved on the basis of ray optics, है ना, and as well as on the basis of wave optics. रे ऑप्टिक्स से भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूव हो रहे थे, वेव ऑप्टिक्स से भी होंगे. तो वेव ऑप्टिक्स से कैसे होंगे? हाइगन्स प्रिंसिपल से. ठीक है. सो हाउ वी प्रूव रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन प्रूव कब होगा? व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. अगर हम एंगल आई को एंगल आर के इक्वल प्रूव कर देते हैं, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन इज देयर. ठीक है. तो वेव से कैसे प्रूव करें? फर्स्टली वी टेक अ प्लेन सरफेस, ठीक है, और अ प्लेन मिरर. ठीक है. मार्क कर दो इसको कुछ भी, एम एम डैश. देन
M dash is a plane surface. You have to write all these things. Let us consider a plane surface M dash. Let two incident light rays strike on it. ठीक है, दो इंसिडेंट लाइट रेज ली. वी यूज द पॉइंट वेयर हमने क्या पढ़ा था इन द यस्टरडेज क्लास, दैट रे इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट. मतलब रे और वेव क्या होते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है, ये पढ़ा था. सो दिस इज फर्स्ट इंसिडेंट रे विच स्ट्राइक ऑन द मिरर एट दिस पॉइंट. व्हाट वी ड्रॉ हियर, इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन विच इज नोन एज नॉर्मल. तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा. Then this ray got reflected. ठीक है, इसको थोड़ा सा इक्वली कर लो ताकि एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R हम प्रूव कर सकें. ठीक है, दिस इज एंगल I एंड दिस इज एंगल R. ठीक है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट इंसिडेंट रे विच स्ट्राइक ऑन द मिरर. इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ इज नॉर्मल. इट गेट rebounds in the same medium. Understood? There is another incident ray which strike on the mirror. Then there is normal at the point where it strike. एक और normal होगा, ये वापस चली जाएगी. ठीक है, तो these are two incident light rays. अभी हमने क्या बात की कि wave front is perpendicular to the ray या ray is perpendicular to the wave front. अगर ये दो रेज हैं तो हम यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं. कैसे करेंगे प्लेन वेव फ्रंट ड्रॉ, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. कैसे ड्रॉ करेंगे, ये एक है, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए इस तरीके से करना है कि वो ज्वाइन हो. ठीक है, हमें करना है इंसिडेंट पे, तो ये हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं. ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर. This is a plane wave front. This is what we call this wave front, incident wave front. क्या कहेंगे बेटा इसको, इंसिडेंट. इंसिडेंट रे पे होना चाहिए, इंसिडेंट वेव फ्रंट. अंडरस्टूड दैट पॉइंट. नेक्स्ट वी हैव दिस फर्स्ट रिफ्लेक्टेड लाइट, दिस इज सेकेंड रिफ्लेक्टेड लाइट. If the incident light strike on a mirror or a polished surface, it get reflected. अगर रे रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट मीन्स वेव फ्रंट भी रिफ्लेक्ट हो रही है ना. अगर हम रिफ्लेक्टेड रे पे नॉर्मल ड्रॉ करें, क्या हम उसको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कह सकते हैं. अंडरस्टूड दिस बेटे. ठीक है, तो हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे पे. ठीक है, स्ट्रेट ड्रॉ करना. So what we call this? This is reflected wave front. Understood this? I'm telling you again. These are two incident light rays which strike on the mirror. They got reflected. They rebounds after striking this mirror, right? So that means if ray are rebouncing back after striking the mirror, that means wave front is also rebouncing, है ना. जो रेज हैं इन पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दिस इज वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट विच इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट रेज. ठीक है, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज. रे पे परपेंडिकुलर या वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर रे. ठीक है, ये हमने कल भी किया था. तो इन पे परपेंडिकुलर अगर हमने ड्रॉ कर दिया इंसिडेंट लाइट रेज पे, तो दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट. और अगर रिफ्लेक्टेड लाइट पे किया, दैट इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. सो इफ दिस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर या सरफेस, सो इट इज 90 डिग्री एंगल. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो 90 डिग्री. So can we write this angle as 90 minus I? क्योंकि according to the laws, अगर ये एंगल I है तो ये भी एंगल I होगा, है ना. ये कंप्लीट कितना है, 90 डिग्री है.
क्या हम इसको 90 माइनस आई लिख सकते हैं? कैन वी राइट इट 90 माइनस आई? ठीक है, इफ वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, this small is 90 minus I, this is what we can write,